So much for joining us. Many of you know that Adarniya Chinmay Bhaiya ji is a doctor by profession. He's the Vice Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, and he holds many Bharatiya and international positions, accomplishments, and awards. However, what truly defines Adarniya Chinmay Bhaiya ji is his absolute Shraddha and Samarpan towards Param Pujya Gurudev ji and Vandaniya Mata ji. His deep respect and adoration towards his parents, Shraddheya Dr. Saib and Shraddheya Gigi, and his love, compassion, and ability to connect with all the Parijans all across the globe, irrespective of their age and stature. Please give a warm welcome to Chinmay Bhaiya ji. Bhaiya, aapka swagat hai. Pranam. बहुत धन्यवाद एमी and sincerely apologizing to everyone for appearing late here. There was heavy storm last night. We are in the middle of the monsoon season. So यहाँ पर पूरा जो network का cable था, it was completely damaged. It took us a while to get disconnected, and I'm happy that I can see all of you. It must be the night for everyone, and I think when Amy Ben said to arrange the second meeting, I never thought that it would be so divinely arranged. Today is the Vandaniya Mataji's Avtaran Divas in Shanti Kunj Haridwar. So it's absolutely perfect occasion. आज ही वंदनीय माता जी की जयंती भी है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है. इससे ज़्यादा शुभ दिन नहीं हो सकता था. Very auspicious and very sacred day. So I'm very happy to be connected with everyone from Shanti Kunj, Tapasthali, Karma Bhumi, Jnana Bhumi of Gurudev. And very happy that this kind of mode is giving the possibility to connect with all the people that are always deep in our hearts. आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको कि हम लोग निरंतर स्मरण नहीं करते होंगे और याद नहीं करते होंगे कि एक बार जरूर सब लोग आ जाएं. अब धीरे धीरे कोरोना के बाद चीजें खुल रही हैं, शांति कुंज पहले की तरह से लौट रहा है और लोग भी उसके साथ साथ लौटना शुरू हो गए हैं. तो आई एम होपिंग कि with the increase in the transportation and all other such possibilities, it would be possible to see everyone back in Shanti Kunj, their second home on this planet. तो कुछ चीज़ें, आज का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है. तो सबसे पहले तो वंदनीय माता जी के लिए ही कुछ चीज़ें कहना चाहता था, क्योंकि इट इज़ ए वंडरफुल डे टुडे और हम लोग महसूस नहीं कर पाते. आज सुबह ही मैं एक एनेक्डोट शेयर कर रहा था. आई वाज शेयरिंग ए संस्मरण विद एवरीवन दिस मॉर्निंग कि 1991 and 1992, I think probably must have been 92, early 1992, we went to Gangotri with Paramudaniya Mataji, and on the way there is a spot that comes called Ganganani. There is a hot water place there. वहाँ पर गर्म पानी का सोता है, because I don't know whether people know or not, but Himalayas are the dormant volcanoes. There are volcanoes underneath, और ऊपर से snow आ गई है, so it creates a very interesting situations because there are places in between where hot springs come. तो एक जगह पर रोका, वो गंगनानी स्थान है, वहाँ पर हॉट वाटर का है. तो माता जी ने कहा खाना निकालो बेटा. तो वी वर जस्ट प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, एंड देन शी टुक समथिंग आउट फ्रॉम हर पर्स एंड देन शी गिव इट टू मी एंड शी सेड दैट इफ यू गो जैसा 40-50 मीटर आगे जाना, तो वहाँ पर एक व्यक्ति बैठे होंगे, उनको दे देना. So I went in that direction and there was an elderly man sitting, like very tall, very face was lighting like anything, जो एकदम तपस्या का चेहरा होता है, और was radiating all over the place. तो उनको मैंने दिया, प्रणाम किया. प्रणाम करने के बाद कुछ देर उनने बातें करी और उनने अपना परिचय दिया. He introduced himself as the closest disciple of Swami Krishnanand ji. And Swami Krishnanand ji was one of the most notable saints of last century. तो आप लोगों में से जिन लोगों ने पढ़ा हो, तो स्वामी कृष्णानंद जी, उनकी जो केव थी वो गंगोत्री में गंगा माता का जो मंदिर है उसके ठीक ऑपोजिट, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, वहाँ पर उनकी केव थी. एंड ही यूज्ड टू सिट इन दैट केव फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, नेवर यूज्ड टू वेयर एनी क्लोथ्स, पहनते नहीं थे, और एक ही चट्टान पर he used to sit for months and months, महीनों बैठे रहते थे. और महीनों के बाद जब खड़े होते थे तो जो स्किन थी ना, वो एकदम स्टिक कर जाती. और बहुत ही पवित्र आत्मा थे.
गुरुदेव ने उन्हीं की गुफा के अंदर रह करके जितने भी जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स थे, सेक्रेड स्क्रिप्चर्स थे, इनका ट्रांसलेशन उसी गुफा के अंदर रह करके किया था। एंड ही गॉट अप टू pranam, convey the pranams to Puj Gurudev when he entered into the cave and also when he returned back. तो उनके शिष्य थे वो जो अपना परिचय दे रहे थे और उनने इतनी ब्यूटीफुल बात कही। जितनी बार गुरुदेव का नाम आता था, I am saying it metaphorically, but it was absolutely true. Like, if in a sentence, 100 times Gurudev's name used to come, he would get up at his place, pranam karte the, and then he would continue his thing. And he said कि people are unable to understand who he was. बोले लोग समझ नहीं पाए हैं कि गुरुदेव कौन है। बोले एक समय था कि जब वो गायत्री की उपासना करते थे और आज का समय है जब गायत्री उनकी उपासना करती है। बोले he has gone beyond all possible dimensions. He is the जागृत हिमालय। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई विश्व का इतिहास लिखेगा आफ्टर 2 centuries or 3 centuries, then it won't be possible to write the history of this world without naming Gurudev. और आज भले से पॉसिबल नहीं है उसको जान पाना, but try to imagine like when Jesus Christ came, there was no one, like 30-40 years later, no one was actually even naming his anywhere. Only जो Jewish Christians थे, Gentiles थे, they were the people who were actually revering him. And unless, like, St. Paul came, St. John came, the Gospels were written, that introduced the Christianity everywhere. So this is definitely possible. कि गुरुदेव के जीवन का एक एक क्षण लोगों तक पहुंच सकता है और अभी भी वो लहर जो है आनी शेष है। तो मैं सुबह यही कह रहा था कि पूरे विश्व के इतिहास के केंद्र में यदि गुरुदेव है तो पूरे शांति कुंज और गायत्री परिवार के इतिहास के केंद्र में माता जी का नाम लिए बगैर you cannot complete the history of Shanti Kunj. Every single dimension of her personality is so perfect and so beautiful. हम लोग नारी सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए मॉडल्स ढूंढते हैं, उनसे बेहतर मॉडल नहीं है। आई मीन इस देश ने एक से एक बढ़ करके नॉलेजेबल लोग दिए और एक से एक बढ़ करके ऐसी रानियां दी। रानी लक्ष्मीबाई आई, रानी हाड़ा आई, रानी होलकर आई, एक से एक बढ़ करके फेरोशियस लेडीज देके और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल आई। भारवी आई, मानवी आई, गार्गी, घोषा, पाला, लोपामुद्रा, ग्रेट काइंड ऑफ लाइक ऐतरा आई। they were the greatest ऋषि, फीमेल ऋषिज। और फिर एट द सेम टाइम एक से एक बढ़ करके सती नारियां आई, अनुसुईया आई, सावित्री आई, शांडिली आई। फिर जब भक्तों की गणना आई तो मीरा आई, लल्लेश्वरी आई और उन सब के कलेक्टिव फॉर्म के रूप में माता जी आई। मैं सुबह ही बोल रहा था कि आप सोच करके देखो कि हम लोगों को तो पता भी नहीं, बहुतों को ये बात, पर माता जी ने 1940s में when we were still under occupation and India was a country कि जिसमें लोग कहते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। At that time माता जी had a degree in Ayurvedacharya. She was probably one of the first few female Ayurvedacharya in 1940s. और उसके विषय में भी उनने किसी को बताया नहीं। Those certificates were retrieved only after her demise. जब शरीर माता जी ने छोड़ा तो उसके बाद उनके जो छोटे भाई थे उनने वो ला करके दी कि ये डिग्री जो है ये शायद आप लोगों को कहीं पर जरूरत पड़े। तो देन एवरीवन केम टू नो कि माता जी हैड अ डिग्री इन आयुर्वेद। सो इमेजिन कि कितना मल्टी फेसेटेड उनका व्यक्तित्व था। हम लोग तो उतना ही देख पाते हैं कि उनने प्यार दिया, हमारी माँ की तरह थी, पर पूरे विश्व की माँ भी वो रही। तो इससे मैं समझता हूँ कि ऐसा यदि न होगा तो संभव नहीं हो पाया होगा। वो जगत जननी भगवती गायत्री जो हम लोग कहते हैं वो सारा माता जी के व्यक्तित्व में मिल जाता है। अद्भुत जीवन, मतलब प्रेम भी उतना, संघर्ष भी उतना। आप कल्पना करके देखो कि 1971 में जब गुरुदेव गए हिमालय की यात्रा पर तो माता जी ने यहाँ आकर के शांति कुंज की स्थापना की। उस समय में शांति कुंज इतना आइसोलेटेड था, दिस प्लेस वाज कंप्लीटली डिजर्टेड, फॉरेस्ट वाज एवरीवेयर। कहीं से भी वाइल्ड एनिमल्स आ जाया करते थे, एलिफेंट्स, स्नेक्स, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, दे वर वेरी कॉमन, स्टिल वेरी कॉमन। इस साल के अंदर ही 3 बार हमारे यहाँ एलिफेंट का अटैक हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 1970s में क्या सिचुएशन रही होगी। तो उस समय में यहाँ आकर के इस पूरे कैंपस को एस्टेब्लिश करना, दिस वाज, और
कितनी ज़्यादा ग्रिट की और कितनी ज़्यादा रिजॉल्व की आवश्यकता है, कितने ज़्यादा डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है टू मेक दैट हैपन। तो आज का दिन तो अत्यंत शुभ है, वंदनीय माता जी के अवतरण का दिन है, और हम लोगों के लिए तो आराध्य भी हैं, हम लोगों के लिए तो वंदनीय भी हैं, हम लोगों के लिए तो पूजनीय भी हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व के हम लोग वंशज भी हैं और उनके अनुगामी भी हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ा सकें, और जो योजना लेकर के वो धरती पर आए थे उसको जन जन तक पहुंचा सकें, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं हो सकता। महसूस व्यक्ति नहीं कर पाता है। व्यक्तिगत सौभाग्य भी आते हैं जीवन में और सामूहिक भी आते हैं। हमको कोई नेशनल अवार्ड मिल जाए तो उसका एक सिग्निफिकेंस है, पर थोड़े ही समय तक। नोबेल प्राइज भी मिल जाए तो एक ही साल तक वैल्यू रहती है, अगले साल किसी और को मिल जाएगा तो नोबेल प्राइज पुराना हो जाता है। आप मिस यूनिवर्स हो जाओ, मिस वर्ल्ड हो जाओ, तो उसकी वैल्यू भी एक ही साल तक है, अगले साल वो भी चला जाता है। If you get an award from a president, or if you get an award from a prime minister, then it's also only of value till the prime minister is there. Prime minister चला गया तो उसकी भी वैल्यू चली जाती है। पर यदि आपको भगवान के साथ काम करने का अवसर मिले तो जन्म जन्मांतर तक सौभाग्य रहता है। ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने बायोडेटा पर लिख सकेंगे कि हम लोगों ने भगवान के साथ काम किया। तो वी हैड एन अपॉर्चुनिटी, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी that we would be able to write on our CV and our resume that we had a possibility to work alongside with भगवान themselves, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी। तो आज के इस पवित्र दिन पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और एक बार फिर से हृदय से सभी को भाव भरा नमन। अब मैं एक एक करके जो प्रश्न हैं जो अम्मी बहन ने भेजे थे उनको मैं एक एक करके लेता हूँ। थोड़ा सा क्षमा करिएगा, मुझको प्रश्न को देखने के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। गिव मी 1 सेकंड। जिस सीक्वेंस में प्रश्न आए हैं उसी सीक्वेंस में मैं उनको ले लेता हूँ, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न लोगों ने पूछे हैं। आई थिंक दे आर वंडरफुल क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है वो जयप्रकाश भाई ने गायत्री परिवार टेक्सास से पूछा है। सबसे पहले तो जयप्रकाश भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ और गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से एकदम सुरक्षित निकल करके आए। प्रार्थना करता हूँ कि जो उनकी पुत्री है और सभी लोग दे ऑल इन द फैमिली आर नाउ सेफ एंड वेल। तो मुझको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, तो मैं प्रणाम यहाँ से भेज रहा हूँ जयप्रकाश। प्रणाम जयप्रकाश जी। भगवान करे कि आप लोग सुरक्षित हो। डैलस में, टेक्सास में एवरीवन इज बिल्कुल सब सेफ कुछ एंड वेल। बढ़िया, सब कुछ। खूब सारा प्रणाम। प्रश्न जयप्रकाश भाई ने पूछा है कि पोस्ट COVID-19 देयर वुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन US, कैनेडा एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हाउ गायत्री परिवार कैन कंट्रीब्यूट हेल्पिंग दोज फैमिलीज टू कम आउट ऑफ such difficulty? Any specific help and directions we can get from शांति कुंज? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों का शांति कुंज का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही सही पूछा जाए गुरुदेव ने यही दिया, पीड़ा और पतन का निवारण। गुरुदेव ने कहा कि इफ somebody is suffering and we are able to help them, or somebody is lost in the journey of the life and we are able to bring them back to the main path, जो उनके जीवन का पथ था, जो उनका मनुष्य होने के नाते पथ था, जो करने के लिए वो पैदा हुए थे, इस जगह पर यदि हम लेकर के आ जाते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। इससे बढ़िया परिभाषा धर्म की भी नहीं है और इससे बढ़िया परिभाषा शांति कुंज की भी नहीं। गुरुदेव ने कहा पीड़ा और पतन का निवारण। कोई आपसे पूछे कि शांति कुंज का उद्देश्य क्या है, गायत्री परिवार का उद्देश्य क्या है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर परिभाषा नहीं है। पीड़ा और पतन का निवारण। दुखी व्यक्ति है, उसके दुख को दूर कर दे, और भटक गया है तो सही राह पर ले आए। बस दो ही तरह के दुख है। आदमी को या तो दुख इसलिए हो जाता है क्योंकि कर्म प्रारब्ध संस्कार के कारण दुखी है, या दुख इसलिए आ जाता है क्योंकि जिंदगी में गलत चॉइसेस ले ली। बस दोनों का निवारण कर दे तो आदमी बिल्कुल सही जगह पर आ जाएगा। तो दिस इज द एसेंशियल पर्पस फॉर अस टू बी हियर। आवर मेन ड्यूटी इज टू डू दिस, पीड़ा और पतन का निवारण। तो मैं समझता हूँ कि COVID-19 में तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे हेल्प कर सकते हैं?
कैसे हेल्प करने के लिए दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो हम लोग कर क्या सकते हैं व्यक्तिगत दृष्टि से और सामूहिक दृष्टि से। सामूहिक दृष्टि से पहले बोलता हूँ क्योंकि हम लोग गायत्री परिवार के रूप में आज बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अलग अलग जगहों पर सेंटर्स बनाकर, जैसे क्या है कि कुछ लोग कनाडा में हैं, कुछ लोग अमेरिका में हैं, ये जिस तरह का जोन सिस्टम हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं वैसा एक रीजनल सिस्टम ले लें कि इस रीजन में ये, इस रीजन में ये, इस रीजन में ये। ऑलरेडी जो सेंटर्स हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि शिकागो, न्यू जर्सी, लॉस एंजलिस, अपना ह्यूस्टन, इन जगहों पे जो सेंटर है। कनाडा में जो सेंटर्स है मॉन्ट्रियल में, टोरंटो में, और टोरंटो में तो दो दो इमर्ज कर रहे हैं, फिर जो वेस्ट कनाडा में है, इन सारी जगहों पे जो सेंटर है उनमें कुछ लोग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। और पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि आइडेंटिफाई करना कि किन लोगों को हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि हेल्प की आवश्यकता हर एक को नहीं होती। यदि गलत व्यक्ति को हेल्प चली गई तो वो भी बड़ा दुखद होता है। एक मैं कहानी पढ़ रहा था संत की, कि संत थे वो क्या करते थे कि रोज एक पैसा कमाते थे, ओल्डर डेज आई एम टॉकिंग अबाउट। और एक पैसा कमाते कैसे थे, टोपी बनाते थे। टोपी बना करके जो टोपी को बेचने से सेल होती थी वो एक पैसा होती थी, और जब तक वो एक पैसा कंज्यूम नहीं हो जाए तब तक अगली टोपी नहीं बनाते थे। तो एक टोपी उन्होंने बनाई, बनाने के बाद सेल करी, एक पैसा मिला। एक पैसे को दो हिस्सों में बांटते थे, एक हिस्से के लिए घर का खर्चा और एक हिस्से को डोनेट किया। और डोनेट किसको करते थे, जो फर्स्ट पर्सन सामने आता था उसको डोनेट कर देते थे। तो एक सेंट आया उनके पास, एक सेठ आया उनके पास, सेंट के पास, और उनसे बोला कि आप ये देते हैं, आपको कैसे पता है कि सही व्यक्ति को जाता है कि नहीं। वो बोले कि भाई जो धर्म का पैसा होता है वो सही व्यक्ति ढूंढ लेता है। बोले कैसे, बोले आपका पैसा कैसा है, बोले भाई मैंने तो बेईमानी करी है। सेठ बोले, बोले मैंने बेईमानी करी है, कुछ इलीगल काम किया है। बोले आप आपका पैसा डोनेट करो। तो बोले ठीक है। सेठ ने तुरंत एक सोने का सिक्का निकाला, उसकी कीमत 10,000 पैसे के बराबर होती थी। उनने सोने का सिक्का निकाला, बोले जाके देता हूँ, बहुत ध्यान से दूंगा। बोले ठीक है। और सेठ जो है दिन भर देखते रहे, दिन भर देखते रहे कि कौन मिलेगा। अंत में जाकर के उनने एक अंधे व्यक्ति को देखा, उन्होंने कहा इसको दे देता हूँ, ये व्यक्ति तो क्या है, इसका मिसयूज करेगा। उन्होंने उसको दे दिया। अगले दिन देखने के लिए गए कि क्या हुआ, तो देखा अंधा व्यक्ति तो शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है। उसने वो जो सोने का सिक्का था उससे शराब खरीद ली और शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है और बहुत बुरी स्थिति में। तो सेठ बोले कि अरे ये कैसे हो गया। तो सेठ जो है वापस आए उनके पास, संत के पास। संत से बोले कि साहब ये तो बड़ा गलत हो गया, आप बताओ क्या करना चाहिए। बोले अब देखो कि पैसे का क्या होता है। वो बाहर निकले, उनने कहा कि मेरे जो आधा पैसा है, बोले ले जाके जो पहला व्यक्ति मिले उसको देना। तो उनने एक व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति के हाथ में एक बोतल थी, वो उस बोतल को लेकर के धीरे धीरे पैसा लेके वो बड़ा खुश हुआ, और व्यक्ति जो है बोतल को लेकर के नदी की तरफ जाने लग गया। तो उन्होंने कहा कि क्या करेगा क्या करेगा। तो संत के पीछे वो जो सेठ जो था उस व्यक्ति के पीछे पीछे चले गए। जाते 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 गए, नदी के पास पहुंचे। तो नदी के पास जाकर के उसने वो जो बोतल थी उस आदमी के हाथ में, उसने पानी के अंदर फेंक दी। तो पानी के अंदर जब फेंकी तो उसने कहा, उसको रोक करके पूछा सेठ ने, उसने कहा कि क्या था इस बोतल के अंदर। बोला साहब जहर था इसके अंदर। बोला मेरे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना था। अब बोले कि मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं से कोई व्यक्ति मुझे कुछ दे दे, और आज जहर खरीद के लाया था कि कुछ नहीं होगा तो अपने घर वालों को दूंगा और खुद खाऊंगा और मरूंगा। बोले आज आपने पैसा दिया तो मेरा घर का खर्चा 1 हफ्ते तक चल जाएगा। तो वो सेठ जो है तब उसको समझ में आया कि पैसा जो है वो अपने आप अपने लिए व्यक्ति ढूंढ लेता है। तो पहली चीज है ढूंढना कि हेल्प की आवश्यकता किसको है। गलत को चली गई तो भी गलत है। और उसमें भी मेरा जो सुझाव होगा वो ये है कि सबसे पहले हम लोग टारगेट करें कि हमारे परिजनों में किसको हेल्प की आवश्यकता है। अपने परिजनों में बहुत सारे होंगे जिनको की हेल्प की आवश्यकता होगी। एक मॉडल मैंने देखा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग पिछले साल लंदन में गए थे, और लंदन में क्या था कि हम इस साल का कार्यक्रम करना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो वी वर ट्राइंग टू बुक एन ऑडिटोरियम इन द सेंट्रल लंदन कि कौन सी अच्छी जगह हो सकती है।
तो एक ऑडिटोरियम लगा बहुत अच्छा, उसमें 800 की कैपेसिटी थी, बिल्कुल सेंट्रल लंदन में था। हमने कहा ये बिल्कुल आइडियल लोकेशन है, ले लेते हैं। तो वो एक जूइश ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो उसके जो हेड थे वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री में दे देंगे ऑडिटोरियम, देयर इज नो चार्ज एंड नो वन गिव्स इन लंदन, लाइक यू नो, नो वन गिव्स एट द सेंट्रल, वो भी हार्ट ऑफ लंदन में। तो मैंने कहा कि अरे तो बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। तो बोले बस एक ही छोटा सा हम लोगों को फेवर चाहिए। मैंने कहा हाँ, बताइए। बोले वॉट एवर यू नीड इन साइड दैट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस लिस्ट। उन्होंने 30 लोगों की लिस्ट निकाली, और वो 30, आपको पानी चाहिए तो आप यहीं से मंगाओगे, आपको यदि फूल चाहिए तो यहीं से मंगाओगे, आपको यदि खाना चाहिए तो यहीं से मंगाओ, आप अपना नहीं ला सकते, यहीं से मंगाना है। तो मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं? बोले दे ऑल आर आवर जूइश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड दे नीड हेल्प। मुझे इतना अच्छा लगा वो मॉडल कि देखो, यदि हम दूसरे की हेल्प करें, हमें कोई हेल्प चाहिए, गायत्री परिवार में कोई काम चाहिए, तो अपने ही लोगों को देते हैं। वॉट एवर वी नीड, हम यदि अपने गायत्री परिवार के अंदर देते हैं तो कितने सारे लोगों का पेट भर जाता है। आई थिंक इट्स ए वंडरफुल मॉडल। तो एक ये देखने की आवश्यकता है कि अपने परिजनों में किसको हेल्प की आवश्यकता है। फिर शांति कुंज गायत्री परिवार जो बृहत्तर है, उसमें कितनों को हेल्प की आवश्यकता है। शांति कुंज में भी बहुत समय से गतिविधियां शून्य है, लोग आ नहीं रहे हैं, कोई गतिविधि नहीं चल पा रही है। विश्वविद्यालय यथावत चल रहा है। इस वर्ष हम लोगों ने, और बच्चों को भी चूंकि तकलीफ थी, तो उसमें भी हम 35% ही फीस ले रहे हैं। बच्चों से हमने कहा कि हम कुछ लेंगे नहीं, खाना हम पहले ही निःशुल्क देते थे, मेंटेनेंस चार्ज लेते नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये देखें कि हेल्प की आवश्यकता किसको है, और उसके बाद फिर जब इंडिविजुअल को हेल्प करना है तो उसमें जो लोग वल्नरेबल ज्यादा है, जैसे एल्डरली हैं, अकेले रह रहे हैं, जैसे वो लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जैसे वो लोग हैं जो कि अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों को पहले हेल्प दी जा सकती है। अब उसके बाद हेल्प किस तरह की दी जा सकती है? तो वन वे इज टू गिव चैरिटी, लाइक फाइनेंशियल हम लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल में भी कई तरह की हेल्प है। जैसे किसी को हो सकता है कि फाइनेंशियल चैरिटी नहीं चाहिए हो, पर उसको लोन मिल जाए बिना कमीशन के, कि उसको यदि कहीं पर कोई डेफिसिट हो रहा हो तो अपने गायत्री परिवार के जो लोग सक्षम हैं वो अपने ही लोगों को पर्सनल कैपेसिटी में लोन दे दे। दे कैन ऑल्सो हेल्प इन सच ए मैनर कि जैसे सपोज करें कि किसी के बच्चे की कोई ट्यूशन फी रुक रही है, तो ट्यूशन फी के लिए हेल्प कर दी कि आप बाकी चीज के लिए नहीं चाहिए, आपके बच्चे की एजुकेशन थी और वो अभी रुक रही है, तो वी कैन हेल्प फॉर दिस ट्यूशन फी, और वी कैन हेल्प फॉर दिस थिंग, और वी कैन हेल्प एज ए गारंटियर ऑन दिस सिचुएशन। तो फाइनेंशियल में भी बहुत सारे तरीकों से हेल्प पहुंचाई जा सकती है। फिर मटीरियलिस्टिक हेल्प पहुंचाई जा सकती है। तो जैसे सपोज करें किसी को लैपटॉप की आवश्यकता है और अभी नहीं खरीद सकते हैं, पर किसी के पास पुराना पड़ा है जो वो यूज नहीं करते, तो दे सकते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो हैंडीमैन होंगे, वो अपनी स्किल दे सकते हैं। कुछ डॉक्टर होंगे जो अपने गायत्री परिवार के लोगों को मुफ्त में इलाज दे सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो टीचर्स होंगे, वो बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन दे सकते हैं। तो उन थोड़ी थोड़ी जगहों पर भी लोग जो है बहुत सारी चीजों को बचा पाने की स्थिति में होंगे। तो फाइनेंशियल हेल्प दी जा सकती है, मटीरियलिस्टिक हेल्प दी जा सकती है, स्किल की हेल्प दी जा सकती है। फिर साइकोलॉजिकल हेल्प दी जा सकती है। कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, वो मेंटोर का काम कर सकते हैं, काउंसलर का काम कर सकते हैं। जो यंग जनरेशन है वो इस समय में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बाहर निकल नहीं सकती है, बच्चे ज़्यादातर घर के अंदर हैं। अमेरिका में तो चीज़ें खुल गई हैं खैर, पर जैसे क्या है कि फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहले कर पाते थे, वो आज की तारीख में उतनी ही लिबर्टी के साथ कर पाने की स्थिति में नहीं है। एजुकेशन में भी अनसर्टेनिटी है, जॉब के क्षेत्र में भी अनसर्टेनिटी, इकोनॉमी भी श्रिंक कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारे तरह के एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जिनमें कि हेल्प दी जा सकती है। तो उसमें काउंसलिंग दी जा सकती है, गाइडेंस दी जा सकती है। कुछ लोग हैं जो लीगल हेल्प दे सकते होंगे, कुछ लोग हैं कि इस तरह की हेल्प दे सकते होंगे कि ऐसे समय में आप कौन सी बॉडीज को कांटेक्ट करें। और सबसे ज़्यादा बेहतर स्पिरिचुअल हेल्प दी जा सकती है। जो लोग तकलीफ में हैं उनके लिए प्रार्थना करी जा सकती है। एक सामूहिक समय निर्धारित कर लिया जाए कि इस समय में हम लोगों को, इन इन लोगों को तकलीफ है, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। उसका जो बल है वो अभूतपूर्व होता है। हम लोग प्रयत्न करके देखें, आदमी के हृदय में इतनी बार मैंने देखा, एक नहीं मुझको लगता है हजारों बार मैं देख चुका हूँ कि प्रार्थना करिए गुरुदेव से और वो निश्चित रूप से पूरी होती है। ऐसा कभी देखा ही नहीं। उनका अपने आप
ऐसा आशीर्वाद आ जाता है कि आपने, बस हमारा काम है कि हम निर्मल हृदय से उन तक पहुंचा दें, उसके बाद बाकी का काम तो वो कर ही लेते हैं। और उन तक चिट्ठी पहुंचाने की जिम्मेवारी तो हमारी है, उन तक फैक्स करना, उन तक जो है मैसेज पहुंचाना ही हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है उसमें निश्चित रूप से हम लोगों की जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है। पहले चरण में आइडेंटिफाई करके देखें कि हेल्प की आवश्यकता कौन है, और उनमें भी प्रायोरिटी उनको दें जो लोग वल्नरेबल हैं, गायत्री परिवार के हैं या बृहत्तर गायत्री परिवार के हैं। और हेल्प के तरीकों में फाइनेंशियल हेल्प दी जा सकती है, और फाइनेंशियल में भी चैरिटी एक एस्पेक्ट है, पर लोन दिया जा सकता है किसी को, जो है उसके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है उसको शेयर किया जा सकता है। और उसके बाद फिर स्किल की हेल्प है, मटीरियलिस्टिक हेल्प है, साइकोलॉजिकल, पैरालीगल, लीगल हेल्प है, स्पिरिचुअल हेल्प है। और एक और सजेशन होगा कि जो भी हेल्प दी जाए उसको डॉक्यूमेंट जरूर कर लिया जाए। उसके दो एडवांटेज होते हैं, एक तो अन्य लोगों के साथ शेयर करने में एडवांटेज हो जाती है। अपने जो गायत्री परिवार यूथ ग्रुप के बच्चे हैं, मिहिर है, चार्मी है, एमी बहन है, आस्था है, वर्तिका है, ध्रुव है, इन लोगों ने मिलकर के दे हैव स्टार्टेड ए वंडरफुल न्यूज़लेटर वेरी। उसके अंदर क्या है कि सारी गायत्री परिवार की गतिविधियां वहां जा रही हैं। हम लोगों ने उसके ऊपर स्पेशल एडिशन शांतिकुंज में भी निकाला था कि इतना बढ़िया प्रयास अपने यूथ ग्रुप ने किया है। तो उसके अंदर ये न्यूज़ चली जाएगी तो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने के अलावा लोग इसलिए भी इंस्पायर होते हैं क्योंकि उनको आइडिया मिल जाता है कि और क्या किया जा सकता है। आई थिंक दैट्स ए वंडरफुल पॉसिबिलिटी, इसको जरूर करने की आवश्यकता है। आई होप दैट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन धर्मजीत भाई ने पूछा है टोरंटो से। आपका योग का बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है टोरंटो में, और उनने बहुत अच्छा कार्यक्रम पूछा है क्वेश्चन पूछा है धर्मजीत भाई ने। देयर इज ए सिल्वर लाइनिंग with current pandemic situation, and it may be a good opportunity for us to promote work of Gurudev. Knowing this, what areas and what activities we shall focus now in North America to help promote and spread our mission to new people and communities? क्या इस विषय में आइडियाज हो सकते हैं? इस विषय में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मेरे ख्याल से दो तरह की चीजें हैं इसमें। एक चीज तो यह है कि हम लोग व्यक्तिगत दृष्टि से क्या करें, और एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करें। तो 3 सूत्र मैं दूंगा। पहला तो है जागना, दूसरा है जगाना, और तीसरा है जोड़ना। ये समय इन तीनों चीजों को करने का है। एक तो खुद के जागने का है कि यदि हम कहीं गलती से शिथिल हो रहे हो, निष्क्रिय हो रहे हो, कई बार क्या है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आदमी क्या है इन दिनों में खाली ज्यादा है तो ज्यादा समय उसका सोशल मीडिया में चला जाता है, और सोशल मीडिया में भी क्या है निगेटिव बातें ज्यादा होती है, तो वो चीजें अन्यथा हमारे मन को घेरने लग जाती है। जो मूल उद्देश्य था, जो सोच करके आए थे, जो अंदर की कॉल थी, अंदर की पुकार थी, वो कहीं ओझल होने लग जाती है। तो इस समय जागने का है। पहला समय एकदम आदमी जाग करके खड़ा हो जाए कि गुरुदेव जी सामने हो, माता जी सामने हो, और पूछे कि तूने क्या किया बेटा, तो एकदम स्मरण आ जाए कि मैंने क्या किया। औरों की हमें नहीं पता, हमें अपना देखने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं। और यदि हमारी इंडिविजुअल रिपोर्ट मांगी जाए गुरुदेव से, तो हम इंडिविजुअल रिपोर्ट शान के साथ दे सके कि साहब आपने ये करने को बोला था, मैंने उसमें 1 इंच की कमी नहीं करी है। ये समय अपने आप को जगाने का है। आदमी हर दृष्टि से जगाए। साधना यदि कमजोर पड़ रही है तो साधना करे, स्वाध्याय कमजोर पड़ रहा है तो ये समय गुरुदेव के साहित्य को गंभीरता के साथ पढ़ने का है। लोग क्या है कि पढ़ने में चूक जाते हैं, बहुत गंभीरता के साथ पढ़ने का है गुरुदेव के साहित्य को, भारतीय संस्कृति के साहित्य को। मैं आपको बताऊं, जो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, मेरी जिंदगी के सबसे कीमती उदाहरणों में से एक। 4 साल का था मैं, तो गुरुदेव ने एक कटोरी दी, कहीं रखी भी थी, मैं बहुत समय तक उसको अपने पास रखता रहा, थोड़ी बड़ी सी थी। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू इसमें रख करके अनुष्ठान कर। तो उसी कटोरी में रखकर खिचड़ी लेकर के 40 दिन तक का अनुष्ठान किया। 4.5 साल का रहा हूँ। जब समाप्त हुआ अनुष्ठान, तो अनुष्ठान के समाप्त होने के बाद गुरुदेव ने यज्ञ का कुंड दिया और बोले कि देख ऐसा है कि तेरा भाई बहन नहीं है, तेरा भाई है। बोले ये क्या है? बोले तेरा भाई है। बोले गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। बोले भगवान कहते हैं कि इंसान अकेला पैदा नहीं हुआ, उसके साथ यज्ञ भी पैदा हुआ है।
बोले मैं तेरा भाई तुझको दे रहा हूँ, बोले तू इसका ध्यान रखना है, तेरा ध्यान रखेगा, बोले हमेशा यज्ञ करना, यज्ञ को छोड़ना नहीं, यज्ञ तुझको नहीं छोड़ेगा। और ऐसा वो जीवन में नियम बना कि कहीं पर भी 3 बार तो मुझको लंदन में जो है अपना घर पोतना पड़ा, क्योंकि तो कुछ रहा एकदम रोज सुबह सुबह जो है यज्ञ करने की आदत थी, तो पूरा घर मेरा गुफा जैसा हो गया था। तो इसलिए क्या है कि यज्ञ की एक आदत दी पूज्य गुरुदेव ने। और दूसरा क्या बढ़िया दिया, दूसरा जिस कारण से मैं बोला, 11-12 वर्ष का था तो गुरुदेव ने योग वासिष्ठ दी यहाँ रखी भी हुई है। तो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि गुरुदेव मुझको तो थोड़ा सही नहीं लग रही। मैं गुरुदेव के पास गया तो मैंने कहा गुरुदेव मुझको तो ये जम नहीं रही। बोले क्यों? मैंने कहा ये वशिष्ठ जो ऋषि हैं वो आज के समय में भी हैं, दिलीप के समय में भी हैं, इक्ष्वाकु के समय में भी हैं, राम के समय में भी हैं। मैंने कहा 800 साल तो गुजर गए, एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव हंसने लग गए, बोले बेटा वो पद का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं। और बोले तुझको भरोसा नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं। बोले तुझे भरोसा करने को कहा किसने? बोले पर बिना पढ़े रिजेक्ट नहीं करना। और इतनी कीमती बात थी, मैं आपको बताऊं कि जितना लोग क्या है तुरंत पहले कहने लग जाते हैं कि साहब गीता में लिखा हुआ है, स्मृति में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, पर हमने पढ़ के कब देखा है? खुद पढ़ करके देखी। तो इससे बढ़िया अवसर नहीं है। जब आदमी खुद पढ़ करके देखता है तो उससे ज्यादा आस्तिक होकर के नहीं लौटता। इससे बढ़िया अवसर नहीं होगा कि आदमी गहराई के साथ साधना भी कर ले, स्वाध्याय भी कर ले। जीवन में यदि दिनचर्या अस्त व्यस्त चल रही है तो उसको सही करने का यही समय है। एकदम अपनी जो दिनचर्या है वो शांति कुंज की दिनचर्या के साथ मैच कर लीजिए, अर्थ आवर के अनुसार। वैसे करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, फिर आपको दिन में सोना पड़ेगा, रात में जगना पड़ेगा। तो अर्थ आवर के अनुसार सुबह के 3:30-4 बजे जो उठने का क्रम है वो उठने का क्रम शुरू हो जाए। सुबह के वक्त आपका ध्यान, उपासना, जो स्वाध्याय करने का क्रम है वो हो जाए। आप जॉब पर जाते हैं उससे पहले लगभग ये सारे काम पूरे हो जाएं। और जॉब जब आप गए तो आप समझिए कि जॉब पर तो आप पैसा सरकार से ले रहे हैं या जिस जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे ले रहे हैं, पर भगवान ने आपको पोस्ट कर दिया। ये हमारी जो वर्क प्लेस है, हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पर हर व्यक्ति को गायत्री परिवार का बनाना है। आप तो ये सोच करके जाइए कि जो व्यक्ति दिख रहा है उसको गायत्री परिवार का बनाना है। और जहां पर हमें तो अपने आप दिन इतना शानदार जाएगा, दिनचर्या को बेहतर बनाने का ये राइट समय है। तो व्यक्तिगत दृष्टि से तो ये चीजें हैं कि आदमी जाग जाए, जागने के लिए साधना जाग जाए, स्वाध्याय जाग जाए, हमारी कर्म भूमि जाग जाए, हमारी गतिविधियां जाग जाए। दूसरा ये समय जगाने का है। किनको जगाया जाए? वो लोगों को जगाया जाए जो कभी गायत्री परिवार के बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर हुआ करते थे पर आजकल डोरमेंट हो गए। उनको आप ढूंढ ढूंढ करके जगाइए कि क्यों सो गए हो आप। आपके पास तो गुरुदेव ने इतना दिया, आपको तो माता जी ने इतना दिया, आपके परिवार में तो इतने लोग हैं, आप सबको जगाओ ना, सबको खड़ा करो, उनसे कहो आप लोग क्यों सो रहे हो भाई, आपको तो जगने की आवश्यकता है। आप उन लोगों को जगाइए जिनको गुरुदेव ने जोड़ा। आप और किनको जगाइए? आप केंद्रों को जगाइए। जितने केंद्र हैं, जितनी शाखाएं हैं, जहां ब्रांच चला करती थी और नहीं चल रही हैं उनको जगाइए। बाल संस्कार शालाएं शिथिल हो रही हैं उनको जगाइए। सारे केंद्रों को जगाइए। और किनको जगाइए? और आप गतिविधियों को जगाइए। जो गतिविधियां चला करती थी, कार्यक्रम चला करते थे, उनको जगाइए। उनको भी जगाने की आवश्यकता है। जितनी लोग गतिविधियां जो चलती थी, प्रज्ञा मंडल है, युवा मंडल है, महिला मंडल है, जो जो गतिविधियां गुरुदेव ने दिया है, यूथ ग्रुप है, युवा प्रकोष्ठ है, जो जो हम लोगों की गतिविधियां हैं उन सबको जगाइए। भाई सो क्यों रहे हो? हमारा काम है जगाने का। आप लोग जगाने की टोली बनाइए। रोज सुबह फोन करेंगे, हर दिन चेक करेंगे, हर हफ्ते में चेक करेंगे कितना काम हो गया है, क्या चल रहा है। शांति कुंज से रोज हमारे पास खबर आ रही है। शांति कुंज से कोई नहीं पूछ रहा है तो गुरुदेव डायरेक्ट पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ कि क्या चल रहा है। आप क्या है उनसे कहना कि अब ये समय जो है सोने का है ही नहीं। 6 महीने के लिए कुंभकर्ण सोया करता था, हम लोग कुंभकर्ण थोड़े ही हैं। अब कोरोना के बाद से अब 6 महीने हो गए, अब तो जागने का समय है। तो आप कहना कि जागने का समय, जगाने का समय, और क्या करने का समय, और जोड़ने का समय। धर्मजीत भाई ने पूछा है तो जागने का समय, जगाने का समय, जोड़ने का समय, नए नए लोगों को जोड़ना है। मैं आप लोग देखिए यहाँ पर एकदम क्या गुरुदेव का आशीर्वाद देखिए। अभी मैं देखा पार्टिसिपेंट कितने, तो एकदम 108 पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। एकदम गायत्री मंत्र के 108 अक्षर मिलकर के माला हो गई है। तो हम लोग 108 लोग यहाँ पर हैं। हर 108 व्यक्ति यदि ये सोचे कि हम लोग इस साल में 10 नए लोगों को जोड़ेंगे और 10 नए लोगों में से कम एक परिवार को
शांति कुंज जाएंगे तो साथ लेकर के जाएंगे, बस आपने जीवन भर के लिए जोड़ दिया। जब आपने जोड़ दिया, 10,000 लोग अभी इसी कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जो ई कमरा हम लोगों का है, इसी में 10,000 लोग बैठे हुए हैं। तो नए व्यक्तियों को जो है जोड़ने की जिम्मेवारी है। 10 व्यक्ति बहुत मुश्किल नहीं है। आप आराम से सोच करके देखो कि हफ्ते में, आप महीने में एक नए व्यक्ति को आपको बताना है बस, और तब भी आपके पास 2 महीने की छुट्टी हो जाती है बीच में। वैसे जोड़ेंगे तो 12 महीने हो जाते हैं, तो 12 दिन 12 व्यक्ति हो जाएंगे। इस तरह से तो क्या है, अपन नए लोगों को जोड़ सकते हो। तो एक तो क्या है, बिल्कुल नए उद्देश्य के साथ जागने की आवश्यकता है कि वाह, बिल्कुल ऐसा लगे कि अब मन में एक सेकंड के लिए भी ये ना आए कि अरे कहीं हम लोग ढीले पड़ रहे थे। एकदम तेजी से गतिविधि हम लोगों की बहुत फास्ट हो जाए, आदमी जाग भी जाए, आदमी जगा भी दे और जोड़ भी ले। तो एक ही व्यक्ति के अंदर तीनों ऊर्जाएं दे दी जाए, खुद भी जागा हुआ हो, दूसरों को भी जगा रहा हो और रोज जोड़ने का काम कर रहा हो कि अरे नए नए चीजें। ऐसे लोग आप एकदम तैयार कर लीजिए कि साहब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लोगों को जगाऊंगा, रोज जोड़ूंगा, इस हफ्ते की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे क्षेत्र में जितने लोग हैं, एक एक व्यक्ति को, वो गायत्री परिवार के लोग जो पहले खूब काम किया करते थे, आजकल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? छोटी सी बात ही तो थी, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी थी, तो इसमें गुरुदेव का तो कोई दोष नहीं है। हो सकता है कि भाई उस आदमी के व्यक्तित्व में कोई दिक्कत हो, तो अपन क्या करेंगे? काम गुरुदेव का थोड़ी रुकना चाहिए। हो सकता है कि किसी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी तो हम सेंटर जाना थोड़ी बंद कर देंगे। सेंटर व्यक्ति का थोड़ी, गुरुदेव का। हमको कोई चीज सही नहीं लग रही है तो हम गतिविधि थोड़ी रोक देंगे। गतिविधि व्यक्ति की थोड़ी है, वो तो गुरुदेव की है, उसमें गति आनी चाहिए। तो आप जो है दूसरा जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। फिर जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं व्यक्तिगत दृष्टि से, कि ये समय जो है हम लोग देखें तो इससे बढ़िया समय जो है वो अपने कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलेगा। फिजिकल दृष्टि से भी आदमी डेवलप हो सकता है, मेंटली भी डेवलप हो सकता है, इमोशनली भी डेवलप हो सकता है, सोशली भी डेवलप हो सकता है। हर तरह से देखा जाए तो जिस समय की हम लोग कल्पना करते थे कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अब इससे बढ़िया टाइम ही टाइम है। आदमी खूब अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो यदि मैं समरी दूं इतने बढ़िया प्रश्न की तरफजीत भाई के, तो मेरे को लगता है कि एक तो इस समय जागने का, जगाने का और जोड़ने का है। खुद भी जागे, उन लोगों को जगाएं जो कभी गायत्री परिवार की दूरी हुआ करते थे, किसी कारण से सो गए हैं, भटक गए हैं, उनको कहें अरे साहब, आपको गुरुदेव ने जिम्मेवारी दी थी, आप कैसे पीछे हट सकते हो? आपको आगे आना है। और आप छोटी मोटी बातों को भूल जाओ। आदमी धरती पर थोड़े दिन के लिए रहता है, फिर बाकी समय तो गुरुदेव के साथ ही गुजारना है। तो इतने समय में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आदमी को अच्छा लगा, एक को बुरा लगा, गुरुदेव का काम थोड़ी रोकते देंगे हम। तो आदमी जागे, जगाए और जोड़े, ये कार्य इस समय के लिए किया जा सकता है। मुकुंद भाई ने गुल्फ से प्रश्न पूछा है। मुकुंद भाई के पिताजी यहीं पर है, हरिओम भाई साहब के हैं। मुकुंद भाई साहब वगैरह गुल्फ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम वहाँ पर चल रहा है। मुकुंद भाई ने प्रश्न पूछा है कि what is the meaning of word kalnemi and what are his actions which are not regarded well? Pardon me for my ignorance of this word and personality. अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कोई वर्ड भी नहीं जिसको जानने से हमें कोई लाभ मिले। पर फिर भी पूछा है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत प्रचलन में आजकल चल रहा है। इसमें ये एक खूबसूरती है भारतीय परंपरा की, कि हमारे यहाँ पर देवी शक्तियों के अवतार होते हैं। भगवान विष्णु सतयुग में भी आते हैं, फिर द्वापर में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। कभी राम बन करके आते हैं, तो कभी कृष्ण बन करके आते हैं, कभी नरसिंह बन करके आते हैं। तो हमारे यहाँ आसुरी शक्तियों के भी अवतरण होते हैं। वही लोग हैं, दो चार गिने चुने, जो बार बार भेष बदल करके आ जाते हैं। तो कालनेमी जो है, पहले तो तब आए जब भगवान वाराह अवतार के रूप में आए, तो हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में आए कालनेमी। अंधक के भाई थे, जो अंधक था। और वो भी कभी समय मिलेगा, अभी तो समय ही नहीं दे रहे गुरुदेव, बेकार की झंझटों में लग गए हम लोग। तो इसलिए क्या है कि उतना जो आनंद है स्वाध्याय करने का और लोगों को बताने का, वो नहीं मिल पा रहा है। पर जो उसका इसके पीछे का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सही है। जैसे हमारे यहाँ पर कोई चीज कही गई, हिरण्याक्ष का मतलब है प्रकाश, और जब हिरण्याक्ष की जिसकी आंखें जो है प्रकाश से भरी थी, जैसे नेबुला फूटा, तो उसी के साथ साथ जो दूसरा पैदा हुआ वो अंधक था। अंधक ब्लैक होल की तरह से है। तो लगभग वही बिग बैंग जैसी कल्पना है जो उसके साथ जो उसका भाई पैदा हुआ।
और उसका जो छोटा भाई था वो था काल नेमी। काल का मतलब होता है टाइम, नेमी का मतलब होता है स्पाइक। वो जब आता है तो टाइम को बदल देता है। तो अच्छा समय होगा तो पूरा कर देगा, जब आएगा तो खराब समय, इसीलिए नाम काल नेमी पड़ा। काल नेमी तब आया, फिर उसके बाद फिर कृष्ण भगवान के समय में आया, और फिर राम भगवान के समय में काल नेमी आया, क्योंकि रावण का भाई था वो, मारीच का पुत्र था। तो जब हनुमान जी निकले, आप लोगों को कहानी पता होगी कि लक्ष्मण जी जो थे वो मूर्छा में गिर गए थे, मेघनाथ ने मूर्छा चलाई थी। तो चलाने के बाद क्या हुआ कि लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर गए। लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर गए तो देखो क्या खूबसूरती कहानी की, कि वैद्य कहाँ से लाया गया, लंका से लाया गया। डॉक्टर ने मना नहीं किया कि साहब आप अपोजिट पार्टी के हो, मैं आपको देखने के लिए क्यों जाऊं, वो आए तुरंत कि चिकित्सक का धर्म है, हम देखने के लिए जाएंगे। तो सुषेण वैद्य आए। सुषेण वैद्य ने कहा कि साहब मूर्छा का प्रयोग हुआ है, सुबह का सूरज उगने से पहले यदि कोई यहाँ से जाए, और कहाँ जाए, गंधमादन पर्वत पर जाए, वहां तक पहुंचकर और वहां से संजीवनी बूटी को उखाड़ करके लाए और इनको सुंघाए तो होश आ जाए, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। अब प्रश्न ये था कि जाएगा कौन। आप लंका में बैठे हुए हो, फ्लाइट भी पकड़ोगे आप तो पहुंचने में 36 घंटे लगते हैं, आज की तारीख में 36 घंटे लगते हैं आपको। आपको पहले फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी दिल्ली की, फिर दिल्ली से देहरादून की, देहरादून के बाद फिर आपको पूरे दिन का तो ट्रेवल करना पड़ेगा गोविंद घाट का, फिर वहां से 2 दिन की ट्रैकिंग है। तो अब कौन जाएगा और रात भर में कैसे आएगा। तो हनुमान जी बोले हम जाएंगे, जाएंगे और उड़ करके जाएंगे। जब हनुमान जी गए तो कालनेमी ने एक ऋषि का भेष धरा, और ऋषि का वेश धर करके उनको भरमाने की कोशिश करी ताकि वो अपने उद्देश्य को पूरा न कर पाए। तो गुरुदेव ने 1986 के प्रवचन में इस संदर्भ का इस्तेमाल किया था कि कुछ लोग हैं जो बाहर से भेष दूसरा धारण करके लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं ताकि उद्देश्य पूरा ना हो पाए। और आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए यूज हो जाता है क्योंकि यदि हम लोग, हमारा मूल जो है सामना किससे, हमारा मूल सामना तो दुष्प्रवृत्तियों से। गायत्री परिवार की लड़ाई किससे है, दुष्प्रवृत्तियों से, दुर्भावनाओं से। गायत्री परिवार की लड़ाई आपस में थोड़ी है। यदि आदमी आपस में भटक करके रह जाएगा तो सामने वाले को तो फायदा ही हो जाएगा। आप कल्पना करके देखो कि भीम और अर्जुन लड़ाई करने के लिए उतरे और एक दूसरे पर एक गदा चलाने लग जाए तो कौरव तो ताली बजाएंगे, वो कहेंगे वाह वाह हमारा काम तो वैसे ही हो गया। तो कालनेमी का काम यही है कि आपस में विरोध पैदा कर दे। दुर्गा सप्तशती में आपने देखा होगा, दुर्गा सप्तशती में जब असुर हारने लग गए तो उनने लड़ने के लिए किसको भेजा, धूम्र लोचन को भेजा। धूम्र का मतलब होता है धुआं, स्मोक, और लोचन का मतलब होता है आंखें, कि आंखों के आगे जो धुआं कर दे तो कुछ दिखाई न पड़े, या जो दिखाई पड़े वो गलत दिखाई पड़े। जब आदमी का धुआं धुआं हो जाएगा तो फ्रेंडली फायर होने लग जाएगी, आदमी गलत व्यक्ति पे गोली चलाने लग जाएगा। बस वैसे ही होता है, आदमी ये भूल जाता है कि उद्देश्य क्या है और एक दूसरे के ऊपर अन्यथा अपनी ऊर्जा लगाने लग जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि कालनेमी के चक्कर में ना आए, और जिस उद्देश्य को सोच करके हम लोग आए हैं उस उद्देश्य को ही हम लोग याद करें। तो यही ही छोटी सी बात है। फिर किसी ने प्रश्न पूछा है, जयेश भाई ने पूछा है मेरीलैंड से। जयेश भाई बहुत अच्छा काम वहाँ पर कर रहे हैं। उनने पूछा है कि लॉर्ड कृष्ण के जो पेरेंट्स थे वासुदेव एंड जानकी, देवकी, वो जो है पिछले जन्म में साधु थे। तो गुरुदेव के जो पेरेंट्स थे वो पिछले जन्म में क्या रहे होंगे, और वंदनीय माता जी क्या के पेरेंट्स क्या रहे होंगे, और फिर बाकी के लोग जो परिवार में आए वो कौन थे और कौन सी ऋषि संताएं हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देवी शक्तियां जब आती हैं, बहुत ही उच्च स्तरीय आत्माएं आती हैं। इस संसार में 4 तरह की आत्माएं आती हैं। एक तो वो आत्माएं हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रकाश से भरी हुई है, दे आर फुल ऑफ ब्लिस, दे आर फुल ऑफ लाइट, दे आर फुल ऑफ डिविनिटी। उनके अंदर इंच भर की डार्कनेस भी नहीं, और ऐसी आत्माएं ज्यादा नहीं है। वही गुरुदेव बन करके पैदा हो जाते हैं, वही रामकृष्ण परमहंस बन जाते हैं, वही रामदास बन जाते हैं, वही कबीर बन जाते हैं। फिर वो मुस्लिम धर्म में चले गए तो पैगंबर बन जाएंगे, फिर वो ईसा मसीह के यहाँ चले गए तो सेंट फ्रांसिस द असीसी बन जाएंगे। बस रूप बदल करके वही लोग आते रहते हैं। धरती पर अच्छा करने की जिम्मेवारी उनकी है। और ये जो प्रकाश से भरी हुई आत्माएं हैं, ये सिर्फ तभी आ सकती है जब बिल्कुल उसी स्तर की अंधकार से भरी हुई आत्मा है। रावण आएगा तभी रामचंद्र जी आ सकते हैं, बिना मतलब के नहीं आ सकते।
ऐसा नहीं है कि हॉलीडे मनाने के लिए धरती पर आ जाए। रामचंद्र जी तभी आएंगे जब रावण आएगा। उस स्तर का अंधकार होगा तो उसको काउंटर करने के लिए उसी स्तर के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत अंधकार की आत्मा है। बीच की जो आत्माएं हैं उनमें प्रकाश के साथ साथ थोड़ा अंधकार भी है। तो ऐसी आत्माएं जिनमें मूल रूपेण प्रकाश है पर थोड़ा थोड़ा अंधकार है, उसी का निवारण वो लोग कर रहे हैं। फिर ऐसी आत्माएं जिनके अंदर अंधकार है और अंधकार के अंदर थोड़ा सा प्रकाश है। इनमें जो बहुत ही उच्च कोटि की आत्माएं हैं, जो धरती से ऊपर के लोग हैं, जैसे भूह लोक में हम लोग बैठे हैं, ऐसे भुवह लोक है, भुवह से ऊपर स्वह लोक है। भुवह लोक हुआ जहां पर कि हम लोग पितरों को पाते हैं। हो सकता है इससे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाए, किसी ने पितृ के विषय में पूछा है। तो जो पितरों का निवास स्थान है, जो अच्छी पवित्र आत्माएं हैं जिनने जीवन अच्छे उद्देश्य से जिया, पर वो लोग अभी सिद्ध संत महात्मा ऋषि नहीं है, अच्छी आत्माएं, उनके अंदर भाव अच्छा था, वो पितृ कहलाते हैं। वो उस लोक पर निवास करते हैं। उनसे ऊपर स्वर्ग लोक है, जिनके पुण्य ज्यादा हो जाते हैं वो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। पर इन लोकों तक यम का शासन चलता है, यहाँ तक कर्म का अधिकार है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास कर्म है। जिस दिन आपका पुण्य क्षय हो जाएगा आप नीचे वाले लोक में आ जाएंगे। आप स्वर्ग में थे, आपका पुण्य कमजोर पड़ा तो आप पितृलोक में आ जाएंगे, और थोड़ा कमजोर पड़ा तो धरती पर जन्म लेने के लिए भेज दिया जाएगा। वहां पर आप बैठ करके भोग कर सकते हैं बस, और आप अपने कर्म के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उससे ऊपर के लोक में जो आत्माएं हैं वो लोग कर्म मुक्त है। वो सिर्फ अपने संकल्प के आधार पर या भगवान के आदेश के आधार पर आती है। जहां पर गुरुदेव बैठे हैं, जिनको हम जनह लोक, महह लोक, तपह लोक, सत्य लोक, जब प्राणायाम का मंत्र बोलते हैं तो बोलते ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा, ओम महह ओम जनह ओम तपह ओम सत्यम। वो महलोक से महात्मा आते हैं, जन लोक से राजर्षि देवर्षि आते हैं, तप लोक से तपस्वी आते हैं, सत्य लोक से गुरुदेव जैसी आत्माएं आती है। और उसके भी ऊपर जो है वो ध्रुव लोक है। वो सब मिलकर के ध्रुव जो लोक है उसकी परिक्रमा लगाते हैं। सो सारे सप्तऋषि जो है वो या तो सप्तलोक में है या फिर ध्रुव लोक में है। वहां से गुरुदेव का आगमन हुआ है। और उस स्तर की आत्मा को अपने अंदर धारण करने के लिए जो माँ है और जो पिता है उनका उसी स्तर का तपस्वी होना जरूरी है। उसके बगैर धारण नहीं कर पाते, वो झेल ही नहीं पाएंगे। जैसे आपको साइकिल चलानी हो तो आप कहीं चला लोगे, इस कमरे में भी चला लोगे, छोटा सा कमरा है हमारा, इसमें चल जाएगी साइकिल। आपको गाड़ी चलानी हो तो रोड चाहिए, आपको हवाई जहाज चलाना हो तो आपको एयरपोर्ट चाहिए, और आपको रॉकेट उतारना हो तो आपको पूरा आइलैंड जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा रॉकेट को बेयर करने के लिए। बस गुरुदेव को बेयर करने के लिए आपको उसी स्तर की आत्मा चाहिए। वो आत्माएं जो है साधारण आत्माएं नहीं होती, उनके प्रकाश को वही ले पाती है, उन्हीं को धारण करने की सामर्थ्य होती है। तभी तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम धरती पर आएंगे जन्म लेने के लिए, पर कौन धारण करेगा, तो फिर अत्रि और अनुसुईया ने कहा कि हम धारण करेंगे। तो ब्रह्मा जी दुर्वासा भगवान जो विष्णु थे दत्तात्रेय बन करके आए, ब्रह्मा जी जो थे वो चंद्रमा बन करके आए, और भगवान शिव जो थे वो दुर्वासा बन करके आए। इस तरह से तीनों जो है वो एक साथ, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा पैदा हुए, और उसी स्तर की आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। फिर प्रश्न पूछा है प्रकाश भाई ने पेनिसिल्वेनिया से, और प्रश्न उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन इज रिगार्डिंग शनि एंड मंगल दोष। अरे मेरे टाइम तो बोल गया पूरा, सॉरी, मैं आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि 1 घंटा तो हो गया है मैं क्विकली उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तो एक क्वेश्चन इज रिगार्डिंग शनि एंड मंगल दोष। मोस्ट ऑफ आवर किड्स हैविंग जन्म संस्कार, तो लोग क्या है कि बोलते हैं कि somebody is मांगलिक। Let us take a scenario in which a boy has मंगल but a girl has clear जन्म संस्कार. In this case, if you ask an astrologist, then they are asking for a heavy amount of money to do the puja. Is this puja going to help in their routine life? If so, at what level? This is a common question most of the parents facing these days, and I decide to get clarification. बहुत ही अच्छा प्रश्न नमस्कार। है, और इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रकाश भाई ने पूछा है। इसमें बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। मंगल दोष तब कहते हैं अपन लोग जब मंगल जो होता है पहले, चौथे, सातवें, 9वें या 12वें स्थान पर बैठा होता है, मांगलिक कहलाता है। अब आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यदि आप चेक करोगे
तो 85% लोग मांगलिक निकलेंगे, तो मांगलिक इज नॉर्मल, बाकी के लोग नॉर्मल नहीं है। 85% को तो मंगल वैसे ही निकल रहा है। इस डेफिनेशन के अनुसार ऑलमोस्ट एवरीवन इज मांगलिक। तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आदमी व्यर्थ में परेशान होता है। मैं शांति कुंज में यदि आपको कहूँ 85% लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी इसमें मंगल था, उसमें मंगल था। गुरुदेव ने कहा बेटा कोई मंगल की आवश्यकता नहीं है, एक आदमी के कर्म है वही उसका मंगल है, वही उसका शनि है। जब आप ज्योतिष का पहला मंत्र पढ़ो तो उसमें आता है केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोतु शुभाशुभम। ग्रह नक्षत्र किसी का शुभ और अशुभ नहीं करते। सर्व आत्मकृतम कर्म लोकवादो भयायते। हमारे किए गए कर्म ही किसी के लिए सम्मान बन जाते हैं, किसी के लिए अपमान बन जाते हैं। ग्रह कुछ नहीं कर रहे, हमारे कर्म कर रहे हैं, तो उसी को शुद्ध कर लिया जाए। वो मुझको एक घटना याद आती है, बड़ी मजेदार थी। एक हम लोग कहीं गए थे तो एक वहां पर जो थे एक भाई साहब आए हुए थे, वो एक जूलर थे, उनके पास जो है बैठे हुए थे और उनसे बोले कि साहब आप एक काम करो कि आप तो 9 ग्रहों के स्टोन जो है वो बना करके मेरी उंगली में पहना दो। तो उन्होंने कहा 9 ग्रह के स्टोन कौन पहनता होगा? बोले अरे मैं एक ज्योतिषी के पास जाता हूँ, बोलता है कि आपका शनि अच्छा है पर गुरु को देख रहा है। एक के पास जाता हूँ कहता है आपका गुरु अच्छा है पर शुक्र को देख रहा है। एक के पास जाता हूँ तो कहता है शुक्र अच्छा है आपका सोम को देख रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम लोग आपस में बात कर लो पर मुझे छोड़ दो। तो वही है कि आप उनको छोड़ दो, अपन तो गायत्री मंत्र करते हैं, उसी में अपने को खुश रहने की आवश्यकता है। फिर पूछा गया है, हेमंत भाई साहब ने पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम लोग माला करते हैं तो माला की बीड निकल जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। कोई बैड साइन तो नहीं है? कोई बैड साइन नहीं है, बस हम लोग उसमें से बीड नहीं रिप्लेस कर सकते। और यदि जरूरत पड़े तो पूरी माला ही रिप्लेस कर सकते हैं उसको। अपना शांति कुंज जब भी आए तो शांति कुंज से माला नहीं ले लें, गंगा जल में धो लें, रात को रख लें, सुबह से उसको यूज करना शुरू कर दें। सोनिया दीदी ने पूछा है श्राद्ध पक्ष के बारे में कि बिकॉज श्राद्ध इज गोइंग दीज डेज, क्वेश्चन इज कि व्हाई शुड वी ऑफर स्पेशल पूजा ओनली ऑन दीज डेज? एंसेस्टर्स शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। डज द अग्निहोत्र वी डू एवरी डे सॉल्व दिस पर्पज? एब्सोल्युटली, अग्निहोत्र में हम लोग करते ही हैं, पर जो इम्पोर्टेंट बात है श्राद्ध पक्ष की, वो इम्पोर्टेंट बात जो है वो मात्र तर्पण करना नहीं है। तर्पण का मतलब उनको भोजन कराना है। तो हमारे पितृ जो है जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करता है तो जो मान्यता है वो ये है कि इस समय में पितरों को ये छूट दी जाती है कि वो 1 महीने के लिए जाएं और अपने बच्चों के साथ रह करके आए। जिनके मन के अंदर भावनाएं कि हम अपने बच्चों को देखना चाहते थे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं उनको देखना चाहते थे, तो वो आकर के रहते हैं तो भूख लगती है, भूख लगती है तो हम खाना खिलाते हैं। तो जो उद्देश्य है वो मात्र पूजा करना नहीं है, उनको अतिथि की तरह से घर में रख कर उनका सत्कार करना है। इट इज लाइक द गेस्ट्स आर कमिंग टू स्टे विद अस, आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग। 3 जनरेशन तक की लोग पाने की छूट होती है, 3 जनरेशन तक के लोग आते हैं। हम बाबा का करते हैं, पड़ बाबा का करते हैं, हम नाना का करते हैं, पर नाना का करते हैं। तो वो जो श्राद्ध और तर्पण है उसका उद्देश्य मात्र संस्कार नहीं है, उनका उनका आतिथ्य भी। उनको हम लोग जो है गेस्ट की तरह से अपने घर में जैसे वो आए हुए हैं उनको रोक करके सम्मान दे रहे हैं, इसलिए इस समय का मूल्य बढ़ जाता है। फिर अधिक मास के विषय में पूछा गया है कि अधिक मास जो है उसमें भक्ति और साधना का मूल्य कितना हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय ज्योतिष में सबसे बढ़िया व्यवस्था है, देयर इज नो बेटर अरेंजमेंट देन दिस। इससे ज्यादा बेहतर व्यवस्था नहीं है। जो हमारा कैलेंडर है वो ल्यूनार है और जो प्रचलन में है वो सोलर कैलेंडर है। दोनों के बीच में चलते हैं तो गैप होता है, क्योंकि ल्यूनार कैलेंडर में अलग तरीके से डेट पड़ती है, सोलर में अलग तरीके से पड़ती है। तो लगभग 32.5 मंथ्स के बाद 1 महीने का गैप आ जाता है, उस 1 महीने को एडजस्ट किया जाता है। तो हम अकेले नहीं है, जूइश कैलेंडर में भी ऐसे ही होता है और बाकी कैलेंडर्स में भी ऐसे ही होता है। बट द वे इंडियन सिस्टम एक्चुअली डील्स विद इट इज मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट साइंटिफिक, क्योंकि इसमें क्या है, राशि के अनुसार गणना करके डाला जाता है कि कितने दिन का महीना डाला जाए। और जब महीना डाला गया तो लोगों ने कहा इस महीने को किसका नाम दें? बाकी के सारे नाम तो हमारे जो है वो पड़े हुए नक्षत्र के आधार पर, जैसे चैत्र नक्षत्र के आधार पर चैत्र नक्षत्र हो गया, हम लोग ने विशाखा के आधार पर वैशाख हो गया, इस तरह से सारे चल रहे हैं।
तो भाद्रपद के आधार पे भाद्रपद हो गया। तो उन्होंने कहा ये किसको दें साहब, ये एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे दे दो, ये सारी जिम्मेवारी मेरी है। इस महीने में आप जो है जितने भी कर्म है उनका क्षय कर सकते हो, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम जो है भगवान का दूसरा नाम है, इसलिए पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, मल मास है। और इस मंथ में जितने हम लोगों के संचित कर्म है उनका क्षय करने की व्यवस्था है कि आप लग करके एक महीने अच्छे से साधना करो। इसीलिए उसमें जो है 30 दिन के 40 दिन के अनुष्ठान करने की परंपरा है, और भक्ति का मूल्य सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। एक बहुत प्यारी सी कहानी है कि एक संत के पास गए उनके डिसाइपल, और बोले कि साहब मंत्र तो लोग एक ही बोलते हैं, एक ही मंत्र है, फिर अलग अलग परिणाम क्यों आते हैं, एक को ज्यादा मिलता है, एक को कम मिलता है, ऐसा क्यों? तो संत बोले कि अच्छा चलो तुम्हें दिखाता हूँ। ही टुक देम टू द सिटी। वहां पर एक मंदिर बन रहा था, तो लोग अपनी पीठ पर ईंटें उठा उठा करके ले जा रहे थे। संत ने एक व्यक्ति को रोका, बोले भैया क्या कर रहे हो? तो वो गुस्सा हो गया, बोले अरे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं बोझा उठा करके जा रहा हूँ, मेरी पीठ पर इतनी सारी ईंटें रखी हुई, कांट यू सी आई एम कैरिंग द बर्डन। संत बोले अरे सॉरी। दूसरे को रोका, बोले आप क्या कर रहे हो? बोले अरे साहब आदमी को कमाना पड़ता है, रोटी कमा रहा हूँ, अपनी जो है पैसा कमा रहा हूँ, लाइवलीहुड अर्न कर। ठीक। तीसरे को रोका, बोले आप क्या कर रहे हो? हाथ जुड़ गए। बोले साहब भगवान का मंदिर बनाने का अवसर मिला है, मंदिर बना। संत बोले समझ में आया? ईंटें तीनों उठा रहे हैं, एक बोझ की तरह से उठा रहा है, एक रोटी के लिए उठा रहा है, और एक भक्ति के लिए उठा रहा है। मंत्र एक ही होता है, एक जो है बोझे की तरह से बोलता है अरे चलो भैया आज की माला भी पूरी हो जाए, जैसे तैसे कर ले आदमी। एक जो है रोटी कमाने के लिए करता है कि साहब हमको पुजारी है, हमको अपना इसके बदले में पैसा मिलेगा। एक भक्ति के हिसाब से करता है, मंत्र बोलने का सौभाग्य मिला है, भगवान से जुड़ने का सौभाग्य मिला है, न जाने कितनों को तो मिल भी नहीं पाता, उसके लिए मंत्र फलित हो जाता है। तो ये समय जो है वो भक्ति को फलित करने का है। नाउ आई होप कि मैं ओवर नहीं कर रहा हूँ। एक प्रश्न मुझे लग रहा है छूट गया था, पेरेंटल कम्युनिकेशन के बारे में था कि पेरेंट्स और यूथ के बीच में कन्वर्सेशन को नॉर्मल बनाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस आर देयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या है कि हमेशा इस कम्युनिकेशन में एक दिक्कत बनी ही रहती है। मेरे ख्याल से 2 या 3 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। एक तो क्या है कि जब भी हम लोग बच्चों के साथ बात करें तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पे करें, तो उससे क्या है कि वो प्रीचिंग नहीं लगती, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो कष्ट उठाए और जहाँ से हम कुछ सीख करके आए। कई बार क्या है कि जो चीज़ें हम सीख पाए वो अपने अनुभव से सीख पाए। हम शांति कुंज में रहे तो हम 4 ही बच्चे थे, मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो हम कुछ ही बच्चे थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख पाए जो हम दूसरों को अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। तो we can share our own experiences, and personal experiences are better heard as compared to the preaching. Second thing is कि we should pay full attention to the kids. गुरुदेव की जो खासियत थी वो ये थी कि यदि बच्चा भी बात करता था तो उसको ऐसा वो महसूस कराते थे कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वही है। We should give absolute attention to them. Listen to them not like kid, but listen to them like they are giving something very valuable. And do not judge them. जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कोई आदमी अपना ट्रस्ट लेकर के हमारे पास आया है और जैसे ही आया और उसको बदले में यदि प्रीचिंग सुनने को मिल गई तो दिक्कत आ जाएगी। उसने इसीलिए तो शेयर किया क्योंकि वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। एंड इफ वी आर एबल टू लिसन टू देम विदाउट एनी प्रिजुडिस और एनी जजमेंट, then we would be able to give something valuable. So we should talk positively, let them make the mistakes. और ये बात जो है सिर्फ उसी के लिए लागू नहीं होती कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, ये सेंटर्स में भी बड़े सीनियर कार्यकर्ता और जूनियर में लागू हो जाती है। लेट देम मेक द मिस्टेक्स। आदमी कार्यक्रम करेगा तभी तो मिस्टेक करेगा तभी तो सीखेगा। कोई कार्यक्रम किया, कोई इनिशिएटिव लिया, तभी तो पता चलेगा कि हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। This kind of possibility is there. Let them make the mistake, और पॉजिटिव उनको अप्रोच दें, उनको आगे बढ़ने का अवसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करें। और एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये कि वी आर पेरेंट्स फर्स्ट एंड फ्रेंड्स सेकेंड। लोग क्या है फ्रेंड बनने के उसमें ये भूल जाते हैं कई बार, या तो बहुत ऑथोरिटेटिव पेरेंट हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा
फ्रेंड हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मध्यम मार्ग है वो मिसिंग हो जाता है। तो जब आवश्यकता है कि उनके पैर भटक रहे हैं और उनको सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है, देन आवर वॉइस इज मिसिंग, बिकॉज वी कांट टेल देम कि नहीं बेटा ये नहीं करने की आवश्यकता है। हम लोग इतने ज्यादा फ्रेंड बन गए कि वी कांट से, और वी बिकेम सो स्ट्रिक्ट कि दे कांट शेयर विद अस एनीथिंग। तो द जो सॉल्यूशन है इट इज समवेयर इन बिटवीन। तो हो सकता है कि वो किसी हेल्प का हो, ये किसी ने प्रश्न पूछा था। अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। मिहिर और चार्मी ने प्रश्न पूछा है कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द स्टूडेंट्स or young adults who find themselves uncertain about what career to pursue, or to those who have a career path in mind but they aren't confident if they have what it takes to be able to succeed in that career path. बहुत अच्छा प्रश्न है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो आई से 3 थिंग्स। पहला तो ये हमेशा सोचने की आवश्यकता है कि हम किसके ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं, whether it is my dream or someone else's dream. प्लेटो का एक बड़ा अच्छा डिस्कशन आता है कि प्लेटो से कोई पूछता है कि who accomplishes bliss in the life, and Plato says na, somebody asks that what is bliss in the life, and he says to be what you were born to be. यदि आप वो बन जाते हो जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे, then you have got happiness in the life. But we all are trying to be something else. हमें दोस्त ने कुछ कह दिया वो बनना चाहते हैं, पेरेंट ने कुछ कह दिया वो बनना चाहते हैं, हमने कहीं पे पढ़ लिया वो बनना चाहते हैं। हम कभी अपने आप से पूछते ही नहीं कि हम क्या बनना चाहते हैं। इफ वी बी व्हाट वी रियली वांटेड टू बी, तो ऑटोमेटिकली जर्नी आसान हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज टू ascertain that we are not trying to fulfill the dream of someone else. We are trying to fulfill the dream that is completely ours. If it is our own dream, then we would be ready to accept the failures. We would be able to embrace them, and we would be able to take the all the consequences. So Abraham Lincoln wanted to be the president. He failed 13 times or 15 times. I don't remember exactly, but 15 times he failed. 13 times the caution money was taken. But imagine, it must have been his dream. That's why he kept pursuing कि नहीं मुझे फिर से करना है, मुझे फिर से करना है. We are able to do it only if it seems like our own dream. हमारा अपना ड्रीम होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, रास्ते में कठिनाई होगी तो भी क्या, हमको पहुंचना तो वही है. सेकंड चीज है जो it is important to remember, it is my own way of classifying things, कि 3 चीजें मैं बोलता हूँ, duty, passion and purpose. कि duty is something, now I am able to see Mihir also, wonderful. Duty is something we decide out of very mundane things in the life, like my qualification, my knowledge, my experience, my abilities. So if I was trained as a doctor, maximum I can work as a doctor. I can't work as a rocket scientist. I can't work as an astrophysicist. My duty would be decided depending upon my knowledge and abilities and experience and my skills and my attributes. Even as a doctor, I can't work as a gastroenterologist. I can maximum work as a neurologist or psychiatrist, which is what my profession is. So the idea is that your duty, if you do it right, you get stability and security in the life. If I am doing my duty right, I will get financial stability, I will get a stability of routine, I will get a stability of my life. So you are working in the field of finance and accountancy, you would get a setting ki ye mujhko karna hai. Higher to that is the passion. It's where my heart belongs. And people usually confuse kar jate hain passion mein aur hobby mein. Hobby I do to kill the time. Passion I do to cherish the time. रात को 12 बजे भी कोई कहे कि करना है तो मैं करने को तैयार हो जाऊँ. मेरे को एकदम कोई कह रहे वहाँ देखो उपनिषद के मंत्र बोले जा रहे हैं तो मैं खड़ा हो जाऊंगा कि अरे ये वाला तो मेरा शतपथ ब्राह्मण छूट गया था, जरा सा एक बार पढ़ करके आ जाता हूँ. तो क्या है कि वो पैशन है आपका जो आपको एकदम जगा दे सोते में से. और पर्पस इज वेयर सोल वुड लाइक टू गो. इफ आई डू द ड्यूटी राइट, आई गेट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. इफ आई डू द पैशन राइट, I get satisfaction. If I do purpose right, I get fulfillment, I get completion. Problem is, people try to look for all 3 things at one place. वो सोचते मेरी ड्यूटी में मेरा पैशन भी होना चाहिए, पर्पस भी होना चाहिए. नॉट नेसेसरी. हो सकता है कि भाई ड्यूटी अलग हो, पैशन अलग है,
हो सकता है कि यू आर एन अकाउंटेंट बट यू वुड बी वेरी गुड सिंगर, यू वुड बी वेरी गुड आर्टिस्ट, सो यू शुड गिव टाइम फॉर योर पैशन एंड यू शुड इक्वली गिव टाइम फॉर योर पर्पस। तो वो तीनों यदि बैलेंस आउट होते हैं तो ऑटोमेटिकली वेयर एवर यू आर, आई थिंक डिसाइडिंग कैरियर पाथ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि कैरियर इज नॉट द एंटायर लाइफ। ये सोचने की आवश्यकता है कि ड्यूटी है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं दैट डिफाइंस मी एज ए ह्यूमन बीइंग। एंड देन after setting the goal, first thing is to identify that it is our goal, then to decide that we are not mixing the things up, duty, passion and purpose. Then whatever goal we make a realistic goal. People often actually make it difficult because they are making unrealistic goal. Like, you know, if I haven't started, so say for example, एक समय था मैं केदारनाथ में एक दिन में 2 बार चढ़ाया था, अब मैं आज सोचूं कि नहीं मैं केदारनाथ चढ़ जाऊंगा, अभी तो मैं ढंग से शांति मुझ भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो क्या है कि मैं सोचूं कि नहीं मैं एकदम केदारनाथ दिन में 3 बार चढ़ जाऊंगा, इट वोंट बी पॉसिबल। आई नीड टू सेट ए रियलिस्टिक गोल एंड आई नीड टू सेट ए मेजरेबल गोल। मैं ऐसा गोल करूं जिसको मैं मेजर कर सकूं। जैसे मैंने कहा कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊं, दैट इज अ वेरी गुड गोल, बट इट इज वेरी वेग एट द सेम टाइम। मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छे इंसान बनने के लिए मैं क्या करूं। मैंने इतना अनुष्ठान कर लिया हो, इतना स्वाध्याय कर लिया हो, इतनी चीजें कर ली, तो आई शुड मेक ए रियलिस्टिक, मेजरेबल एंड टाइम स्पेसिफिक गोल, जिसको कि मैं मेजर कर सकूं कि मैं यदि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं कि भाई इस 6 महीने में मैंने इतना पढ़ लिया हो, 9 महीने में इतना पढ़ लिया हो, 12 महीने में इतना पढ़ लिया हो, तो दैट इज समथिंग। एंड some other tips that I will give is that first is कि do not hesitate to venture outside your comfort zone। क्योंकि क्या है कि लोग क्या है जनरली कैरियर उसी में डिसाइड करना चाहते हैं जहां पर वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बट देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। हम ट्राई करके देखते हैं तभी अच्छे से जान पाते हैं कि वेदर इट इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू डू। और इट इज वेरी क्लियर, उन लोगों ने अभी रिसर्च करी थी कि जब फर्स्ट ईयर में मेडिकल स्कूल्स में लोग जाते हैं तो पूछा कि आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हो, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक, ऑन्कोलॉजिस्ट, क्या। 73% people what they said in the first year they changed it by the time they reached to the 5th year। only if you try then you know कि भाई हम करेंगे तो पता चलेगा कि whether it's something that I really want to do। और एक और जो मैं सजेशन दूंगा कि find a mentor and be a mentor। like you know at the same time आप किसी से सीखो भी और किसी को सिखाओ भी, तो you are so this actually helps a lot in your own growing। आप किसी से निरंतर सीखते रहो, जिसको कि आप सोचते हो कि हमारा रोल मॉडल है, उससे सीखो और उसी समय में एक जन को डेवलप भी करते चलो। आपसे कोई पूछे कि आपके बाद आप किसको देखते हो, तो आप बता सको कि आप किसको देखते हो। आपके ऊपर किसको देखते हो, तो आप बता सको कि आपके ऊपर आप किसको देखते हो। एंड दैट इज probably not only related to the career but for overall development of the person also। and in addition to that I think count every meeting as an opportunity। क्योंकि क्या है किसी से भी अपन कहीं पर छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी जिंदगी में इतना कीमती सिखा जाती हैं जो अपन कभी नहीं सीख पाते। हम लोग एक बार क्या है कि 7 दिन का ट्रेवल करके पहुंचे हिमालय में, एक जगह का ट्रैक है, 14 दिन की ट्रैकिंग है। वहां पर पहुंचे तो वहां पर मुझको एक ओल्ड व्यक्ति मिला और वो मानने को तैयार नहीं हो कि कोई जगह जो है वो प्लेन भी हो सकती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड सी, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेजर्ट। ही वुड नॉट बिलीव, क्योंकि वो जिधर देखे वहां तो माउंटेन ही माउंटेन है। ही इज वो वहीं पर बोर्न एंड रेज्ड है। एंड दैट इज सच एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कि आदमी क्या है कभी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है तो वो दूसरे को देख ही नहीं पाता। उसने तो जिंदगी में माउंटेन ही माउंटेन देखे हैं, तो उसको पता ही नहीं कि यार समुद्र भी कोई चीज होती है भाई, और कहीं पर रेगिस्तान भी होता है, उसको पता ही नहीं। उसको लगता है कि नहीं सारी दुनिया ऐसी होगी भाई, माउंटेन ही माउंटेन, हर जगह देखो तो माउंटेन दिख रहे हैं। वैसे ही क्या होता है कि आदमी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में एक ही तरह से हो जाता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड जो 2 चीजें हैं और मैं बोलूंगा कि एक तो बी कॉन्फिडेंट बट एट द सेम टाइम हम्बल। लाइक यू नो आदमी को कॉन्फिडेंस की भी आवश्यकता है पर ह्यूमिलिटी की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग बहुत रूथलेस हो जाएं या बहुत एब्रप्ट और रूड हो जाएं अपने अप्रोच में। एंड अनदर थिंग इज कि कोई नई चीज को करते समय में आदमी स्केयर महसूस न करे कि जो चीजें मतलब अपने को ऐसा लगता है कि करने में हमें घबराहट होती है, तो ट्राई द थिंग्स व्हिच स्केयर देम। एंड आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डोंट फॉरगेट दैट। कि हर व्यक्ति को अपना एक इंट्यूशन होता है कि ये करेंगे तो करने में, चाहे उसको अंतरात्मा की आवाज बोलने हो चाहे गुरुदेव का संदेश बोलते हैं, और क्या है वो जो आ रहा है संदेश उसको आदमी अच्छे से सुने। तो आइडेंटिफाई कि
whether it is your dream or someone else's dream. See whether you are not mixing up the things between duty, passion, and purpose. Also, then set up the goals which are realistic, time specific, measurable, vague नहीं हो, they should be. फिर सब सिंपल चीजें हैं कि आदमी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करे, कॉन्फिडेंट हो पर हम्बल नहीं हो, नई चीजों को ट्राई करने में घबराए नहीं, ट्राई टू डू समथिंग आउटसाइड द कंफर्ट जोन आल्सो, बी ए मेंटर लाइक दैट. Hope that answers the question. And one other question that they have asked, what advice would you give to students who want to contribute to the work of mission but also have busy school work or work schedules? Very good question. इसका सबसे बढ़िया सजेशन ये होगा मिहिर की, चार्मी की, we should convert our workplaces as the mission work. That is our कर्म भूमि. हम ये सोचें, देखो हम लोग हमेशा इस बात को हर यूथ कैंप में वी आर वरीड अबाउट इट कि व्हाई वी डोंट हैव द यूथ कमिंग टू द यूथ कैंप्स, और नॉट ओनली इन द यूथ कैंप्स. आई थिंक इट्स ए ओवरऑल क्वेश्चन, नॉट ओनली. और शांति कुंज में तो फिर भी आई एम ब्लेस्ड. लाइक अभी आप विश्वविद्यालय में घूमो तो आप लोग तो आए हो, एवरेज पॉपुलेशन अभी भी 27 या 26 है हमारी. तो इसका मतलब है कि हम पे तो रीजनेबल यूथ पॉपुलेशन है, पर जनरली अपन ज्यादातर अच्छे संगठनों में जाएं तो यूथ देखने को नहीं है. तो इट इज ए गुड थिंग कि आप जिस वर्क प्लेस में जा रहे हो आप वहीं पे कन्वर्ट करना शुरू करो. यू गो, आपका जो अकाउंटेंसी का काम है और आपका जो वर्क प्लेस है, ट्राई टू आइडेंटिफाई आपके सारे फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशलाइजेशन में, ऑल आर यूथ. उनमें से किसी न किसी के अंदर तो अच्छी भावना होगी. उनको आप मिशन बता सकते हो, उनकी भाषा में बता सकते हो, किताब दे सकते हो, गुरुदेव का साहित्य पढ़ने को दे सकते हो. और लोग दिक्कत क्या करते हैं कि वो दो सेपरेट लाइफ सोचते हैं कि हमारी मिशन की लाइफ अलग है और हमारी वर्क की लाइफ अलग है. दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर द सेम. आवर वर्क इज आवर मिशन एंड आवर मिशन इज आवर वर्क. तो यदि क्या एक ही चीज हो गई तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है. हम जहाँ जाएंगे वहां पर हम लोगों को अच्छा ही बताएंगे. एरोप्लेन में बैठेंगे तो बगल वाले यात्री को पढ़ाएंगे, टर्मिनल पे उतर गए तो भी एक आध को दे करके आ जाएंगे, बस में चढ़ गए तो भी किसी को कुछ अच्छा ही बता देंगे. बस वहीं पर हमारा वर्क प्लेस है. एंड some kind of initiatives could be taken, like a student club you can start the leadership programs, you can start the readers club, literature club, all these things, meditation clubs, like which can allow people to learn more about the organization Gurudev's vision. और गुरुदेव के नाम पर आप लोग बेटा वो भी कर सकते हो, you can start a either competition, जैसे ऐसे competitions you can start the competitions in the art competitions, drawing competition. जैसे क्या है, ट्रेवल किसी ने किया, सब लोग जाते हैं छुट्टियों में, तो ट्रेवल मेमोआर के ऊपर सबने चिप इन करा और एक प्राइज रख दिया, और उसमें क्या है, सुनसान के सैचर की जो बुक है कंपेनियंस ऑफ सॉलिट्यूड, यू गिफ्ट देम, कि वो आप उस तरह से दे रहे हो. तो उस बहाने से क्या होगा कि नए नए लोगों तक चिंतन जो है पहुंचेगा. And there are multiple things that we can do, so we don't have to separate the two. तो कोई प्रेशर भी नहीं आता है क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना, हम जहाँ हैं वहीं पर हम लोग कर रहे हैं. एंड इफ वी मेक ए टारगेट कि हर बार के यूथ कैंप में कम से कम हम लोग 2 नए यूथ जो हैं वो लेकर के आएंगे, इट इटसेल्फ बिकम्स लाइक मेमोरेबल फॉर देम. और उनको भी ऐसा लगेगा कि वो एक मेंटर के साथ गए, तो दे कैन ऑलवेज लुक टू यू एंड टू अदर सच पीपल. अपने यहाँ हम ये मान लें कि 100 के करीब यूथ आते हैं, तो हर कोई 2-2 लाएगा तो 300 तो वैसे ही हो जाते हैं, 200 फैमिलीज हो जाती है. What types of sadhana, this is the last question, spiritual routine practices you would recommend to students as they are going back to school and young professional who are working? बहुत ही सिंपल है, गुरुदेव ने इससे बढ़िया साधना नहीं बताई. एक ही साधना बताई है, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत. Every day you born as a new person. Every night you sleep like you were born. यहाँ से जो लेना था ले लिया, खत्म. आज की छुट्टी है, कल का कल देखेंगे. तो जो है गुरुदेव ने एकदम साधना बता दी कि हमको एक दिन मिला है जीने के लिए, और सच बात है हमें पता ही नहीं कल का दिन मिला है कि नहीं मिला है. हमारे पास कोई भगवान का रजिस्टर तो है नहीं कि हम चेक कर सकें कि साहब आप कितने दिन लिखे हुए हैं. हमारे पास तो पता ही नहीं. This paper has not been released to us. So we don't know. Maybe tomorrow would be the last day, but at least today we would live with absolute contentment कि आज का जो दिन मिला था वो अच्छी तरह से दिया. और उसमें गुरुदेव ने इतना सरल बना दिया है, चिंतन और मनन. सुबह उठे तो बिस्तर से नीचे रखने से पहले पैर
आप ये सोचो कि आज का दिन जीना कैसे है, वेरी सिंपल, हाउ आई वुड लाइक टू, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू फुलफिल टुडे, और शाम को एनालिसिस कर ली, करा कि नहीं करा, बस 3 मिनट सुबह चाहिए, 3 मिनट शाम को चाहिए, अपने आप जो है दिन एकदम बढ़िया चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है, और उनको कहना है कि इसी के साथ साथ अपनी छोटे छोटे गोल ऐड करते चले जाएं, ऑटोमेटिकली इट इज अ टाइम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। तो सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आई थिंक आई हैव probably completed all the questions and probably have gone beyond the allocated time. तो सभी लोगों को जिनको मैं देख पा रहा हूँ उन सबको बहुत सारा प्रणाम बोलना चाहता हूँ। चंद्रवदन भाई है, मिहिर दिख रहे हैं, प्रवीण भाई दिख रहे हैं, नलिनी दीदी, सुषमा बहन, प्रकाश भाई, निरंजना दीदी, और अरे अतुल भाई साहब भी दिख रहे हैं, मोक्षदा दीदी दिख रही है, रक्षा दीदी, शीला दीदी, महेंद्र भाई का, भूपेंद्र भाई का, किरण भाई, डॉक्टर मनोज जी दिख रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब के बारे में बोल ही रहा था कि और गायत्री परिवार के लोगों को गाइड कर सकते हैं। मनोज भाई ने भी भेजा था वहां से कोविड-19 का किट भेजा था, हमारे यहाँ सब लोग निगेटिव निकले बहुत अच्छा रहा। भावेश और मोनिका दिख रहे हैं, सबको बहुत सारा प्रणाम। नरेंद्र भाई दिख रहे हैं, नरेंद्र भाई को प्रणाम। राकेश भाई साहब, दीदी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई साहब, दोनों पीले पीले लग रहे हैं। दिव्या की फैमिली दिख रही है, दिव्या आपको प्रणाम, सुमित्रा बहन को प्रणाम, गरिमा, केतन भाई साहब को प्रणाम। आप लोग वैंकूवर में, गरिमा दीदी, वैंकूवर में एक डॉक्टर अरुण गर्ग हैं, वो कनाडा एशियन सोसाइटी के हेड है। कल उनका फोन आया था, उनने 500 किताबें गुरुदेव की मंगाई है, फॉलियो ऑफ द वाइज, अपने हर पेशेंट को देने के लिए। ही इज वेरी कीन। वो अभी आए थे, कोरोना से एक दिन पहले यहाँ आए थे, और उसके बाद ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द एवरीथिंग। तो गुरुदेव का सारा साहित्य पढ़ गए, मैं उनका डिटेल शेयर करूंगा। एंड ही इज द हेड ऑफ द कनाडा इंडिया डॉक्टर सोसाइटी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके चलते हैं। तो वो पूछ ही रहे थे कल कि वैंकूवर में कौन है, आप बता दीजिए। मैंने कहा बता दीजिए। जी जी भैया, हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे भैया। जी भैया, थैंक यू। प्रणाम एमी बहन, थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग और थैंक्स फॉर लाइक होस्टिंग इट। और खूब सारा प्रणाम एमी बहन को, फिर से आपकी हिंदी एकदम मार्वलस हो गई है। Thank you भैया, नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for the special talk and QA session and the wonderful lessons you have imparted on us. The 3 J's, जागो, जगाओ और जोड़ो, will stay with us. And ये हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हमें इसी तरह से मिलते रहिए और इसी तरह से हम सबको कृतार्थ करते रहिए। Thank you so much. धन्यवाद भैया, नमस्कार। सबको प्रणाम। जिनको मैं नहीं कह पाया हूँ, अंजू बेन से लेकर बाकी सभी लोग को खूब सारा प्रणाम। मेरी स्क्रीन में बस सिर्फ 25 ही लोग दिख रहे हैं, तो सभी को खूब सारा प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, मैं निकी बोल रही हूँ। जय गुरुदेव। अरे जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया। सभी लोग को खूब सारा प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कनाडा से जय गुरुदेव, मधुरी रूपरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Everyone, भैया। आप सबको नमस्ते, नमस्कार, शुभ रात्रि एवरीवन। भैया, जय गुरुदेव। So we have also recorded this. We will share that with everybody. So if you want to watch it again. Thank you, Vipul bhai. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। Thank you. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. गुरुदेव। जय गुरुदेव। भैया की बंद। Thank you everyone for joining. Jai Gurudev. Thank you. Jai